और मेरा ताल्लुक J&M इंटरनेशनल मिनिस्ट्री से। और आज हमारी मिनिस्ट्री को तकरीबन 1 साल पूरा कंप्लीट हो गया है। मैं खुदावन का शुक्र अदा करता हूँ। इस पूरे 1 साल के लिए खुदावन ने अपने नाम को जलाल दिया, खुदावन ने बरकत दी, खुदावन ने ज़िंदगी दी। और आज जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो जिसके लिए मैं दुआ करने को हूँ, क्योंकि 4 से 6 दिन पहले यानी सैटरडे की नाइट को मुझे खुदावन ने दिखाया। सैटरडे की नाइट को खुदावन ने मुझे दिखाया कि जैसे बहुत सारे वायरस हैं और बहुत से वायरस जो हैं हवा में फैले हुए हैं, और आज भी जो है काफ़ी तादाद में लोग जो है इफ़ेक्टेड हो रहे हैं। और आज मुझे खुदावन ने, ये बहुत दिनों से था मुझे कि मैंने कोई भी प्रोफेसी नहीं कर पाता था क्योंकि मुझे ये फील नहीं होता था। लेकिन अब मुझे आज जब मैं घर से निकल के आ रहा था तो खुदावन ने, क्योंकि मेरी प्रोफेसी ऐसी होती है कि मैं जब प्रोफेसी करता हूँ सबसे पहले वो मेरी बॉडी के अंदर वो पेन, वो तकलीफ़ होती है, जिससे मुझे पता चलता है कि किसी की भी ये पेन है, किसी की भी ये तकलीफ़ है, तो खुदावन उसे शिफा देगा। अब जो लोग मुझे लाइव देख रहे हैं, जिनके भी ऐसे रिश्तेदार हैं, जो भी लोग हैं जिनकी बॉडी का ये पार्ट और सिर्फ ये पार्ट पेन होता है, चाहे वो कोई भी सिम्टम्स हो, ये दोनों पार्ट हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ मिल के दुआ करें। जब भी आप इस मैसेज को सुने, प्लीज़ इस दुआ को मेरे साथ मिल के रिपीट करें। और जिस किसी की भी ये पेन है इस पार्ट में और इस पार्ट में सिर्फ, तो खुदावंत अभी इसी वक्त उसे छू के शिफा देगा। आए खुदावंत मुझे शिफा दे तो मैं शिफा पाऊँगा। आए खुदावंत तू मुझे बचा तो मैं बच जाऊँगा, क्योंकि तू मेरा फ़ख्र है। यीशु के नाम से आमीन। आपने अपनी शिफा को ईमान से हासिल किया। जिस ईमान से मैंने इन लफ्ज़ों को कहा है जो खुदावन ने मेरे मुंह में डाले हैं, इसी ईमान से खुदावन ने आपको शिफा दी है। जिस किसी की भी गले की इस हिस्से में प्रॉब्लम है या सर में दर्द और आंखों की एलर्जिक है, आज मैं उसके लिए दुआ करूंगा और खुदावन जो है उसे यीशु के नाम से अभी इसी वक्त छू के शिफा देगा। जब भी आप इस मैसेज को सुनो, जहां कहीं भी आप इस पैगाम को सुनो, आई वांट टू बी रिपीट इन इंग्लिश ऑल्सो। द पीपल हु वांट टू बी repeat this prayer along with me, they also receive the same miracle instantly in Jesus' mighty name. If you have a pain on this part or this part, on the back of this part, there is no pain in here and top, only this part and this part. It's a pain is ongoing. It's coming and going, coming and going. Sometimes you feel nothing, sometimes you feel terrible pain. But then God is God who is going to heal you right now. I'm going to pray right now, because whoever have a sore throat or throat infection or whatever it is, nasal congestion, cold, flu, whatever the sickness, whatever the disease, especially the people who have been affected in coronavirus, I repeat it in the name of Jesus, you're going to be healed right now, because Jesus is the healer. He said no weapon formed against shall prosper. Every tongue, every virus which rise up against you, my dear son, my dear daughter, I'm going to be condemned, I'm going to be cancelled, I'm going to be nullified, and I'm going to be deactivated the spirit of death. The spirit of death, I cancel it right now and deactivate it right now by the power of the blood of Jesus. But I want to repeat, please, if you listen to me, if you want to repeat this prayer along with me, you can repeat it. And God is a God who is going to heal you in your house, in the hospital bed, in the wherever you are, the people who are affected in the coronavirus. The God is going to heal, only the simple word. Because when He said the light is going to be take place. When He said that heaven and earth He created by His word. And today I'm going to release the word of God in the name of Jesus. And every people who are sick and have a pain, who are infected in a coronavirus, I release the fire of God over their life in the name of Jesus. And let the people be healed right now. Please pray along with me. Oh Lord, heal me now, so I shall be healed. Oh Lord, saved me now, so I shall be saved. You are my praise. You are my praise. You are my praise. In Jesus' name. अब मैं इसे उर्दू में रिपीट करना चाहूँगा। आए खुदावन तू मुझे शिफा दे तो मैं शिफा पाऊँगा। आए खुदावन तू मुझे बचा तो मैं बच जाऊँगा, क्योंकि तू मेरा फ़ख्र है।
यीशु के नाम से आमीन। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। हमारी ज़िंदगी की कलीसिया के आज बहुत से, क्योंकि हम अपने घरों में करते हैं, बहुत से लोग हमारे पास नहीं आ सकते क्योंकि हमारे पास चर्च प्रेमिसेस नहीं है, लेकिन मेरी आप सबसे ये दरख्वास्त है कि अपने घरों में अपने लोगों के साथ मिलकर दुआ करें ताकि हमेशा यीशु का नाम इज्जत और जलाल पाता रहे। जिन लोगों के पीपल इफेक्टेड हैं, याद रखें कि खुदावन वो खुदा है जो आपकी जलती भट्टी से भी अपने लोगों को निकालने की कुदरत रखता है। याद रखें खुदावन वो खुदा है जो शेरों के मुंह को बंद करने की कुदरत रखता है। शेर वो शेर है जो मौत मंडला रही है आज खुदावन उस शेर के मुंह को बंद करने की कुदरत रखता है, क्योंकि वो अपने फरिश्तों को हुक्म देता है कि तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करें। आज हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं कि वो खुदावन यहाँ मौजूद है, वो खुदावन अपने लोगों के साथ है। आप चाहे किसी भी मुश्किल में हो, परेशानी में हो, तकलीफ में हो, चाहे कुछ भी आपके सामने, चाहे बहरे कुलज़म आ जाए, पीछे मौत आगे मौत, आप बीच में खड़े हैं, क्या करें? खुदावन कहता है कि आज ही तू अपनी आंखों से मेरी निजात को देखेगा, क्योंकि खुदावन निजात दहिंदा है, वो निजात का बानी है, वो निजात देने वाला खुदा है, और निजात सिर्फ यीशु मसीह नासरी के नाम से हमें मिलती है। और हम उस खुदावन का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें ये मौका बख्शा कि हम उसके नाम को जलाल दें। खुदावन का शुक्र अदा करते हैं आज के इस खूबसूरत कलाम के लिए जो कि प्रेज एंड वर्शिप के बारे में है। जैसे कि लास्ट टाइम प्यारी बेटी सारा ने और प्यारी सिस्टर तानिया ने बहुत खूबसूरती से बयान किया। आज उसे हम कंटिन्यू करेंगे और प्यारी बेटी सारा और उसके साथ उसकी छोटी बहन अलीना आज सारे इस पैगाम को सुनाएंगी। आप दोनों के पास 40 मिनट है और आप खुदा के नाम को चला दें। हालेलुया, हालेलुया। मसीह यीशु में आप सबको सलाम, प्रेज द लॉर्ड। और खुदावन की सलामती आप सब पर हो। May God's peace be with you all. मेरा ईमान है कि आप लोग सब ठीक हैं। My faith is there that everyone is okay. Hallelujah. कुछ ऐसा है कि लास्ट टाइम जब मैंने कलाम सुनाया था अबाउट प्रेज एंड वर्शिप, last time when I preached about praise and worship, तो इससे पेशतर कि मैं इस कलाम को जो है वो आप लोगों तक मुंतकिल करती, before that I could preach more about the word of God. खुदावन ने वो कलाम मेरी ज़िंदगी में पहले पूरा किया। God has fulfilled his verses in my life first. खुदावन ने पहले मेरे दिल को इस तरह से तैयार किया कि मैं वो उस कलाम के बीज को अपने दिल में बोऊं। God has prepared my heart before that I can sow the seed in my heart. और फिर मैं वो कलाम जब मेरी ज़िंदगी में फल लाए मैं मुंतकिल कर सकूं। And after that I will sow the seed in others' life. क्योंकि अगर वो उस कलाम ने मुझे तब्दील किया है, if the word have changed me, तो वो सुनने वालों को भी तब्दील करेगा। and they will change the people who are hearing me today. और इसी तरह से and as well आज का जो कलाम है, today's word of God, मेरा जो बेसिकली जो टॉपिक है, basically my topic is कि worship, और उससे जब खुदावन की हजूरी ठहरती है, and the way the realm is created, खुदावन की जब प्रेजेंस आती है, when the presence of God is there, और उसमें जब हम अपनी आप की आइडेंटिटी को समझते हैं, and when we understand the identity of God, हमें अपनी शनाख्त का पता चलता है, we identify ourselves, और उसके बाद and after that हमें we अपनी अथॉरिटीज का जो खुदावन यीशु मसीह में है वो पता चलती है। and whatever authorities are given to us in Christ, we know about that. अथॉरिटीज यानी इख्तियारात, Authority means having control, हमारे हकूक, our rights, ये सारी चीजें हमें पता चलती है। we get to know every ये जो है हम आज सीखेंगे। we will learn this today. अब मेरी छोटी सी गवाही कुछ यूँ है there's a small testimony I would like to share. कि लास्ट वीक खुदावन ने मुझे अपनी बॉडी को सैक्रिफाइस करना सिखाया कि किस तरह से उस कलाम को मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। God has taught me how to sacrifice my body and how should I implement it on my life. और इस हफ्ते खुदावन ने मुझे सिखाया कि अपने इख्तियार को कैसे इस्तेमाल करना। And this week God has taught me how to use my rights and authority। कैसे?
How? दो से 3 दिन पहले मैं एक न्यू हेडफोन्स जो है वो खरीद कर लाई थी 2 to 3 days back, I just purchased a new headphone I bought home. और उसकी यूजेज जो है वो बहुत ज़्यादा थी क्योंकि मैं कान में लगा कर जो है वो सो गई थी और वो 6 से 8 घंटे के दौरान मेरे कान में रहा। The usage was very high. I plugged it and it was in my ears for 6 to 8 और hours. जब मैं उठी तो मेरे कान में ऐसे जैसे लहरों की आवाज़ें चल रही हैं And when I got up, I heard the sounds of waves going into my ears. और मेरे कान जो है वो छोटी से छोटी आवाज़ की तरफ बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गए थे। And my ears were very sensitive. Even the small noise would irritate me. जैसे कोई चीज़ गिरती थी तो ऐसे लगता था जैसे किसी ने बिल्कुल मेरे कान के अंदर आके वो चीज़ गिराई हो। If anything falls, like it used to feel like someone is coming into my ears and they are dropping the things down. और परसों शाम को बहुत ज़्यादा स्वेयर पेन हो गई And day before yesterday, it was a very severe pain. कि मेरा राइट साइड मेरे कान के नीचे पूरा स्वेल हो गया The right side of my ears were swollen. और मैं अपना फेस जो है वो टिल्ट नहीं कर पा रही थी। I was not able to move my head. मुझे चलते हुए चक्कर आ रहे थे When I was walking, I was feeling dizzy. और परसों रात ऑलमोस्ट 8 बजे से लेकर कल रात 10 बजे तक आई वॉज ऑन बेड रेस्ट। So day before yesterday, from evening 8 o'clock to morning 10 o'clock, I was on complete Evening bed 10 rest. o'clock. Evening 10 o'clock, I was complete on bed rest. लेकिन फिर खुदावन से मैंने कहा बेड पे लेटे लेटे Then I spoke to God when I was laying down on the bed. कि खुदावन मेरा तो कलाम है, God, I have to preach the word of God. मैं कैसे करूँगी? How will I do it? मैं ऊंचा बोल नहीं पा रही हूँ, I'm not able to speak loudly. मैं ऊंचा सुन नहीं पा I'm रही हूँ। not able to speak. I'm not able to hear loudly. फिर भी कैसे तैसे मैं उठी, मैंने अपनी बाइबल पकड़ी Anyways, I got up and I took my Bible. और जब मैंने खुदावन का कलाम जो मैंने लास्ट टाइम ऑलरेडी अपने पास प्रिपेयर करके रखा था, And I've already prepared the word of God last week, so I took it. लेकिन क्योंकि वक्त की वजह से थोड़ा सा जो है वो मुझे इस वीक के लिए रखना पड़ा Because due to the time, I had to keep some of it for next week. और मैंने जब उस कलाम को जो सिर्फ लिखा हुआ था उसको सिर्फ रीड किया, सिर्फ पढ़ा So when I started reading the word of God, what I have written in the paper. और उस कलाम ने मुझसे कलाम किया So that word was speaking to me. कि अगर तू अथॉरिटी के बारे में प्रीच कर रही है, so why don't you use your authority? If you're speaking about authority, why don't you use that authority in your life? हालेलुया। Hallelujah. और खुदावन का शुक्र है कि मैं जो हूँ रात को कलाम प्रिपेयर किया, मैंने सुबह जो सारे घर के काम वाम थे सब मैंने किया और खुदावन ने अपने नाम को जलाल दिया। So I thank God for that. I prepared the word of God and I got up and I did all the household work. और अभी दुआ करते फिर से मेरे कान में हल्की सी दर्द हो रही थी When I was praying again, a bit of pain was there in my ears. लेकिन खुदावन जो है But God, शिफा देने वाला है। He's a God of miracles. हालेलुया। हालेलुया। खुदावन चाहता है कि हम अपने इख्तियार को इस्तेमाल करें। God wants us to use our authorities. तो ये मेरी छोटी सी गवाही, मैं खुदावन का शुक्र करती हूँ This was my short testimony and I'm thankful to the Lord. कि मैं आपके हजूर खड़ी हूँ ताकि खुदावन का कलाम आप तक मुंतकिल कर सकूँ। I'm standing in the presence of God so I can preach the word of God to you. हालेलुया। Hallelujah. मैं थोड़ा सा समरी जो है वो लास्ट वीक की बताना चाहूँगी I would like to share the summary which I have preached last week. ताकि जिन लोगों ने हमें लास्ट वीक अगर नहीं सुना तो आप सर्मन के बाद जाके वो पार्ट 1 सुन सकते हैं। So the people who have not listened to me last week, they can go back and they can go through the sermon again. और मैं थोड़ा सा आपके लिए इसको समराइज कर देती हूँ। And I would like to summarize it for all of you. दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 बाब और उसकी 17 आयत। 2 Corinthians 5 बाब और 17 आयत। chapter 5 verse 17. इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वह नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नई हो गई। तो इसमें यह है कि इट्स अ न्यू क्रिएशन, नई मखलूक, और जिस्म का सैक्रिफाइस होना, sacrificing your body. हालेलुया, Hallelujah. और पुरानी चीजें जाती रही। And the old things will go. पर ये कैसे होगा? How will this happen? ये वर्शिप में होगा। This will happen in worship. हालेलुया। Hallelujah. और खुदावन एक और चीज मुझे बता रहा था वर्शिप के बारे में। God was speaking to me one more thing about worship. अगर हम दाऊद की जिंदगी पर नजर करते हैं, If you look over to the life of David, खासकर जब बात वर्शिप की हो तो हम दाऊद को कैसे भूल सकते हैं? so especially when we are talking about worship, how can we forget about David? तो मैं सॉरी 1 सैमुअल और उसका 17 सॉरी
अच्छा, हम अगर 16 बाब की आयत देखें और खुदावंद की अच्छा, मैं इस तरह से इसको देखूंगी कि और खुदावंद ने सैमुअल से कहा कि तू कब साउल के लिए गम खाता रहेगा, पहली आयत से, और कहा कि तू अपने सींग में तेल भर और जा, मैं तुझे बैत लहमी यसी के पास भेजता हूँ क्योंकि मैंने उसके बेटों में से एक को अपनी तरफ से बादशाह चुना है। सैमुअल ने कहा, क्यों कर जाऊँ, अगर साउल सुन लेगा तो मुझे मार ही डालेगा। खुदावंद ने कहा, एक बच्चा अपने साथ ले जा और कहना मैं खुदावंद के लिए कुर्बानी को आया हूँ, और यसी को कुर्बानी की दावत देना। फिर मैं तुझे बता दूंगा कि तुझे क्या करना है, और उसका नाम उसी का जिसका नाम मैं तुझे बताऊंगा मेरे लिए मस्सा करना। हालेलुया। और अगर हम देखते हैं कि 11वीं आयत में कि फिर सैमुअल ने यसी से पूछा, क्या तेरे सब लड़के यही हैं? उसने कहा, सबसे छोटा अभी रह गया है, वो भेड़ बकरियां चलाता है। सैमुअल ने यसी से कहा, उसे बुला भेज, क्योंकि जब तक वो यहाँ ना आ जाए हम नहीं बैठेंगे। सो उसे बुलवा कर अंदर लाया। वो सुर्ख रंग और खूबसूरत और हसीन था, और खुदावंद ने उठकर उससे मसा किया। अब हम अगर थोड़ा सा इस बात के आगे जाएं तो इसमें यह है कि जब साउल ने उसे अनॉइंट किया, so if we go further in this verse, in this chapter, we will understand that when Saul has anointed, तो 13 आयत में लिखा है, so it's written in the 13th verse, तब सैमुअल ने तेल क्या सींग लिया, then Samuel took the horn of oil और उसे उसके भाइयों के दरमियान मसा किया, and anointed him in the midst of his brothers, और खुदावंद की रूह and the spirit of the Lord उस दिन से came upon David आगे को दाऊद पर जोर से नाजिल होती रही। from that day forward. अब हम एक चीज यहाँ पर देखते हैं, जोर से चीज तभी नाजिल होती है जब वो आराम से पहले नाजिल, तो मतलब जब वो ऑलरेडी मसा नहीं हुआ था फिर भी वो खुदावंद के पाकरू से भरा हुआ था, वो चीज उसके अंदर थी। We will look in this chapter that when we say about anointing him, we will see that he was already walking in the realm of God, and he was already anointed. And when we look that something which it comes very heavily on us, it's when we are already walking in God. हालेलुया। हम ये देखते हैं कि दाऊद यहाँ पर जब खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि मुझे मेरे दिल के मुआफिक बंदा मिल गया। So when we look in this chapter, Lord says, I got a person according to my heart. हालेलुया। Hallelujah. क्यों? यहाँ पर हम ये नहीं देखते कि दाऊद बहुत बड़े मजमुआ में जाके वर्शिप करता था। We don't see that David used to go in big society and worship God. हम ये नहीं देखते वो खुदा की हैकल में जाके यहाँ पर प्रस्तिश करता था अपने अनॉइंट होने से पहले। We didn't see that David used to go to churches and he used to worship. हम ये देखते कि वो भेड़ बकरियां चराता था और उन्हीं के साथ उन्हीं के दरमियान रह के वो खुदावन की प्रस्तिश करता था। We will see that he was a shepherd and he used to worship God with his herds. जिसका मतलब ये है, and the meaning of it is, कि वो लोगों के सामने या लोगों को दिखाने के लिए वर्शिप नहीं करता था। That means that he didn't do worship to show people or show off himself. बल्कि उसका इंटीमेट रिलेशनशिप खुदावन के साथ इतना स्ट्रॉन्ग था, but his intimate relationship with God was so strong कि जब उसने उस मतलब इंटीमेसी में, उस अलैदगी में खुदावन के नाम की हमद की, when he used to praise God in the intimacy, तो खुदावन ने उसको पब्लिकली रिवॉर्ड किया। God has rewarded him publicly. कैसे? How? सारे भाइयों को छोड़कर हम देखते हैं कि उसके 7 भाई गुजर गए। So we see that how 7 of his brothers went away, लेकिन 8वें को चुना जो कि दाऊद था। and he chose the 8th one, which was David. उसकी वजह सिर्फ ये थी कि वो परस्तार था And the reason was only that he was a worshipper. और दिखावे का नहीं, He was not a show-off. बल्कि वो उसका रिलेशनशिप वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। His relationship was very तो strong. हम देखते हैं So we will see कि वर्शिप that worship. खुदावंद के साथ इंटीमेसी में बहुत बड़ी की है। So we see that worship in the intimacy with God is a big key. हालेलुया। Hallelujah. अब हम जाएंगे थोड़ा सा आइडेंटिटी की तरफ। We will go to identity now. हालेलुया। हम देखते हैं कि पैदाइश उसका 32 बाब और उसकी 22 से लेकर 32 आयत तक। So we will see Genesis
chapter 32 verse 23 to 32. हमें पता है कि ईसाऊ और याकूब की जो स्टोरी है, याकूब ने कैसे ईसाऊ से उसके बर्थ राइट्स लिए जब वो खाना बना रहा था, और उसके बाद So we see the story of Esau and Jacob, how he took the birthright from Esau while he was making the food, और उसके बाद and after that कैसे ईसाऊ याकूब ने और उसकी माँ ने उसके बाप को चकमा दिया इसहाक को, और वो बाल लगाकर और उसकी सारी जो बरकतें थी, मिरास की बरकतें, वो ले ली. So we see how his mother and Jacob tricked his father while putting the hair of the sheep on their hands so that he would not recognize Jacob. और फिर हम देखते हैं कि याकूब वहाँ से भागा और वहाँ से भागा और वहाँ से भागा. And then we see that Jacob ran away like anything. इतनी सारी बरकतें अपनी ज़िंदगी में होते हुए वो भागता रहा, Having so many blessings in life, but he still ran away. जब तक खुदावन खुद ना आए उसको उसकी आइडेंटिटी देने. Till the time God doesn't come and give his identity to him. हालेलुया. हम Hallelujah. देखते हैं वर्स 18 या 19 में We see in verse 18 or 19 कि खुदा से कहता है that God says कि to him, क्योंकि तू खुदा और खुदा के बंदा पर because you have to the God and God's son, servant, के ऊपर गलबा पाया है, you have conquered him, तो आज से तेरा नाम इस्राएल होगा. so your name will be Israel. मैं चाहूँगी कि आप मेरे साथ चले रसूलों के अमाल I would like you to go with me in Acts 19 बाब verse 19, chapter 19 12 से 16 तक. verse. मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि हमारी अगर हम ये फिजिकल दुनिया में देखें तो हमारी आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है. So we see in this physical world, our identity is very important. हमारे पास हर चीज़ को एक्सेस करने के लिए यूएई में एमिरेट्स आईडी बहुत ज़रूरी है. To do everything, to have access on everything, we need the Emirates ID, which is an identification card. Which is called Emirates Identification Card, EID. Which is called, जो बोला जाता है Emirates ID को Emirates Identification Card. हालेलुया. और मैं चाहूँगी कि हम एक्ट्स उसका 19 बाब उसकी 12 से 16 देखें कि स्पिरिचुअल रेलम में हमारी आइडेंटिटी का होना कितना ज़रूरी है. So we will see Acts 19, 12 and 16 how much important it is for to have a spiritual identity. जैसे ज़मीन पर रहकर बिना प्रॉपर शनाख्त के हम कितनी लीगल अथॉरिटीज़ को जो है उन मतलब हम उसके साथ कुछ कर नहीं सकते हैं या उनसे कुछ ले नहीं सकते हैं. Like for example in this world that we cannot do anything without the legal identity. इसी तरह spiritual realm में you cannot operate. Same way you cannot operate in the spiritual realm. अगर आपके पास spiritual identity नहीं है, if you don't have the spiritual identity. हालेलुया. Hallelujah. इसके हवाला हम पढ़ेंगे रसूलों का अमाल 19, 12, 16 और उसमें यूँ लिखा है, यहाँ तक कि रुमाल और तबके उसके बदन से छूकर बीमारों पर डाले जाते थे और उनकी बीमारियाँ जाती रहती थी और बुरी रूहें उनमें से निकल जाती थीं. मगर बाज़ यहूदियों ने जो झाड़ फूंक करते फिरते थे ये इख्तियार किया कि जिन हैं बुरी रूह बुरी रूह उन पर खुदावन यीशु का नाम ये कहकर फूंके कि जिस यीशु की पालूस मनादी करता है मैं तुमको उसकी कसम देता हूँ. और इसको यहूदी सरदार काहिन के 7 बेटे ऐसा किया करते थे. बुरी रूह ने जवाब में उनसे कहा कि यीशु को तो मैं जानती हूँ और पालूस से भी मैं वाकिफ हूँ, मगर तुम कौन हो? So that even handkerchiefs of apron were brought to this body, to the sick, and the diseases left them, and the evil spirit went out of them. Then some of the intelligent Jewish exhaust took it upon themselves to call the name of the Lord Jesus over those who had evil spirits, saying, "We exhaust you by the name of Jesus whom Paul preaches." Also there were 7 sons of Sceva, a Jewish chief priest, who did so. And the evil spirit answered and said, "Jesus I know, and Paul I know, but who are you?" हालेलुया. हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो 7 बेटे थे जो झाड़ फूंक करते थे, मतलब जो कि जादू तावीज़ करते थे. अगर हम इंग्लिश में देखें इट सेज कि जो सॉर्सरी करते थे, उन्होंने जब ये चीज़ देखी कि ये लोग जो है खुदावंद यीशु मसीह के नाम से
पालूस जो है और पतरस है और ये सारे लोग मतलब खुदावंद यीशु मसीह का नाम लेते हुए विद्रूप यूँ जाती है, मगर एक चीज़ जो उन्हें नहीं पता थी वो ये थी, You will see the seven sons of the priest. They used to do sorcery, which is black magic as well. So they were taking the name of Jesus and Paul. क्योंकि उन्होंने देखा कि पालूस रसूल और पतरस और जो बाकी सारे रसूल है वो यीशु के नाम से बदरूहों को निकालते हैं। They saw that Paul, Peter and other disciples, they used to take out the spirits by the name of Jesus. हालेलुया। Hallelujah. लेकिन फिर उनके साथ हुआ क्या? But what happened with them? उन्होंने कहा They said, कि हम तुझे यीशु के नाम से जिसकी पालूस मुनादी करता है, हम तुझे यीशु के नाम से जिसकी पालूस मुनादी करता है, we exhaust you by the Jesus whom Paul preaches. इस बदन को छोड़ दो। Leave this body. लेकिन वो फिर आगे से पूछते कि तुम कौन हो? But they ask, who are you? हालेलुया। Hallelujah. आज ये सवाल हम अपने आप से करें We should ask the same question today to ourselves. कि हम स्पिरिचुअल रेलम में कौन हैं? In spiritual realm, who are we? मैं कौन हूँ? Who am I? मेरी खुदावंद में पहचान क्या है? What is my identity in Christ? और अगर कहीं पर ऐसा हो कि खुदावंद हमें पब्लिकली यूज़ करना चाहता हो And if God wants to use us publicly today, और हम जो है पूरे इख्तियार के साथ इसी बेशक ईमान का होना बहुत ज़रूरी है, even though God wants to use us publicly and faith is really important, हालेलुया, hallelujah, लेकिन आइडेंटिटी के बिना but without identity, आप स्पिरिचुअल रेलम में ऑपरेट नहीं कर सकते। you cannot operate in spiritual realm. आइडेंटिटी मिलेगी कैसे? How will you get identity? खुदावंद के साथ करीब होकर, Being closer to God. हालेलुया। Hallelujah. हम अगर दुनियावी ताल्लुक से शनाख्त को देखें, If we look at in the worldly perspective of identity, अगर मैं अपनी माँ की औलाद हूँ if I'm the mother of my I'm the child of my mother, और हम 3 बहनें हैं and we are 3 sisters, और मेरी माँ मुझे आइडेंटिफाई करने से मुंह मोड़ लेती है and my mom says doesn't identify me और कहती है कि मेरी सिर्फ 2 बेटियां हैं, and says there are only 2 daughters. तो क्या मैं बाहर जाकर ये इख्तियार इस्तेमाल कर सकती हूँ So can I go outside and use my identity, my कि authority? मेरी मम्मा जो है वो दुबई हॉस्पिटल में स्टाफ है और मैं उनकी बेटी हूँ और प्लीज़ मेरे लिए मेडिकल की आप हेल्प प्रोवाइड करें? That my mom works in the Dubai hospital and please provide me with the medical equipment? नहीं, I cannot. क्योंकि आइडेंटिटी देने वाले ने ही आपको आइडेंटिफाई नहीं किया, Because the person who gives us identity did not identify us. तो आप कैसे इलीगली जाके उसका नाम इस्तेमाल कर सकते हैं? So how can you illegally go and use the name of the और फिर person? हम देखते हैं कि उनका हाल क्या हुआ, What happened to them? और वो शख्स जिस पर बुरी रूह थी कूद कर उन पर जा पड़ा और दोनों पर गालिब आकर ऐसी ज़्यादती की कि वो नंगे और जख्मी होकर उस घर से निकल भागे। Then the man in whom the evil spirit was leaped on them overpowered them and prevailed against them, so they fled out of the house naked and wounded. हालेलुया। हालेलुया। अब ये हाल होता है कि जब हम लोग कोशिश करते हैं कि स्पिरिचुअल रेलम में ऑपरेट करें और फिर ये चीज़ होती है कि वो चीज़ वापस हमारे पे गलबा पाती है, क्योंकि शैतान भी हर चीज़ को जानता है। This happens when we try to overcome the spirits in spiritual realm And we don't have an identity. and we don't have an identity. फिर ये होता है। Then this happens. हालेलुया। Hallelujah. एंड अब हम देखेंगे And now we will see कि आइडेंटिफिकेशन क्या है। what is identification. आइडेंटिफिकेशन है कैरेक्टरिस्टिक्स Identification is characteristics, और एट्रीब्यूट्स। attributes. मेरी जो है वो जिस्मानी तौर पे 10 आइडेंटिटीज हो सकती हैं। For me, I have 10 types of identity मैं right किसी now. के लिए एक वर्शिपर हो सकती हूँ, For someone, I can be a मैं worshipper. किसी के लिए एक बेस्ट फ्रेंड हो सकती हूँ, I can be a best friend to मैं someone. किसी के लिए एक वो इंसान हो सकती हूँ जिसके पास वो आके अपने दुख अपना दिल खोल सके, And I can be a person who can mend hearts. मैं किसी के लिए बेटी हूँ, And I can be a daughter मैं to किसी के लिए someone. बहन हूँ। I'm a sister to तो someone. आइडेंटिफिकेशन इज नॉट स्टैंड अलोन, वो सिर्फ अपने आप में अकेले में नहीं आती, Identification अकेले खड़ा नहीं होता. It doesn't stand alone. जिस्मानी एतबार से, In physically. फिजिकल रेलम। लेकिन सेम तरह जब हम स्पिरिचुअल रेलम में जाते हैं, Same way when we go to spiritual realm, खुदावन ने कहा है यू आर अ चाइल्ड ऑफ गॉड। God said कि तुम खुदावन के बच्चे हो. खुदावन ने ये भी कहा है कि तुम चुने हुए हो,
God also said that you're the chosen one. तुम बरगज़ीदा कौम हो, You're the righteous people. तुम शाही कहनों का फिरका हो। और ये सारी चीज़ें खुदावत ने हमें की है। तो मतलब इवन आसमान के स्पिरिचुअल रेलम में हमारी काफ़ी सारी आइडेंटिफिकेशंस हैं। Even in spiritual realm, there are a lot of identities there. ओके, अभी हमारी जो ग्रेटेस्ट आइडेंटिफिकेशन है, Right now, what greatest identity we have is सबसे बेहतर हमारा ग्रेटेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशनशिप उसको बयान करेगा। ओके, जो हमारी जो आइडेंटिटी, हमारी जो ग्रेटेस्ट आइडेंटिटी है, our greatest identity comes with the strongest relationship. वो आती है strong relationship के साथ. अब जैसे अगर मेरी मम्मा के साथ मेरा रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग है, मैं ज़्यादा वक्त उनके साथ गुजार रही हूँ, If I have a stronger relationship with my mom and I spend more time with my mother, so she will know me better. तो वो मुझे अच्छे से जानती तो है. जो आइडेंटिफिकेशन वो मुझे देंगी, that's the most greatest and the truest one. So whatever identity she gives me, that will be the greatest and the strongest identification for me. अब हम इससे स्पिरिचुअल रेलम में देखते हैं, And we will see in the spiritual realm. आप ज़्यादा वक्त किसके साथ गुजारते हैं? How much time are we spending? आप अपनी मूवीज में टाइम गुजार रहे हैं, You're spending time in movies, अपने गानों में टाइम गुजार रहे हैं, in songs, आप या खुदा के कलाम में और उसके गीतों में टाइम गुजार रहे or you're spending time with God in reading the Bible or with His hymns. हैं। Because your strongest relationship क्योंकि आपके stronger relationship is going to define your greatest identification. वो आपकी greatest identification को बयान करेगा. Hallelujah. Hallelujah. और spiritual realm की जो identity है, Spiritual realm identity, उसकी greatest identification जो मेरे हिसाब से खुदा के कलाम से अगर देखें, the greatest identity जो हम कलाम से अगर if we see it from the word of God, वो ये है, that is हमारी कॉलिंग, our calling. हम क्यों बने हैं, Why are we made? खुदावन ने हमें दुनिया में क्यों भेजा है। Why has God sent us in इस this चीज world? को आप जितनी जल्दी अपनी जिंदगी में जानने की कोशिश करेंगे, As soon as you understand this thing in your life, आप उतने ज्यादा तोड़े उससे प्रोड्यूस कर सकते हैं, the more blessings you will get. ताकि आप आग में ना छिड़के जाओ, So you will not be sent in the fire. बल्कि खुदावन जब यीशु मसीह आए So when Jesus Christ comes, तो वो ये कहे, ऐ मेरे वफादार नौकर, so He will say, "My faithful servant, आ और मेरे साथ बैठ। come and sit with me." हालेलुया। Hallelujah. हम सारा जलाल खुदावन को देते हैं। We will give all the praise to the Lord. अब मैं जाना चाहूंगी अथॉरिटी पर, I would like to go on authority क्योंकि now. जब हमें एक दफा समझ आ जाती है ना कि हमारी आइडेंटिटी खुदावन में क्या है, So once we understand what is our identity in God, तो सब कुछ खुदावन ने जो आसमान पर हमारे लिए रखा है, so whatever God has kept us in heaven for us, उसे समझना और इस्तेमाल करना so to understand that and use the way we use it, हमारे लिए आसान हो जाए। it will be easier for us. तो मैं इसको इस तरह से फ्रेम करना So I चाहूंगी would like to frame it in this way, कि आइडेंटिफिकेशन that identification इज द मेन्यू बुक वो एक मेन्यू बुक है टू यूज और अथॉरिटी कि हम अपनी अथॉरिटी को इस्तेमाल करें ऑन द फिजिकल रेलम, दुनियावी तौर पे व्हिच इज द अर्थ, जो अर्थ है, एंड द स्पिरिचुअल रेलम। और रूहानी तौर पे I'm talking about heavens, I'm not talking about the skies, I'm talking about heavens. जन्नत के तौर पे, खुदावन की हजूरी में आसमानों पर। स्पिरिचुअल रेलम। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जो है अथॉरिटी ज़मीन पर और आसमान दोनों पर जो है खुदावन ने हमें दी है। So I would like to share that the authority God has given us, it's spiritually and physically. अब मैं एक छोटी सी मुझे एक बहुत प्यारी डेफिनेशन एक मिली थी अबाउट किंगडम अथॉरिटी। So I got a very beautiful verse about kingdom authority. I got a definition. I got a definition. It says kingdom authority is divinely authorized. Can you read it for me? Kingdom authority is divinely authorized. Divinely authorized. Divinely तो authorized. जो किंगडम की अथॉरिटी है, मतलब जो उस सल्तनत की अथॉरिटी है वो डिवाइन होता है दो चीज़ें। तो डिवाइनली ऑथराइज्ड, डिवाइन मीन्स डिवाइडेड इनटू हेवन एंड द अर्थ, डिवाइनली ऑथराइज्ड, Rights and responsibility. राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हकूक और उसके साथ उसकी जिम्मेदारियाँ।
has been delegated to believers, जो सिर्फ दी गई है. Delegated is a legal word. हम इसको नॉर्मल अपनी ज़ुबान में नहीं बोलते हैं. हम इसको जब कोर्ट्स या हम इसको जब लीगल जगहों पर जाते हैं तो तब हम कहते हैं कि this has been delegated to this particular person. To act on God's behalf in spiritual ruling. कि हम खुदावन के, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह ने अपना काम पूरा कर लिया, वो अब जाकर वो बाप के दाहिने हाथ पे बैठा है. अब हम खुदावन यीशु मसीह का चेहरा, we are the face of Jesus on the face of the earth. His creation under the lordship of Jesus कि Christ. हम स्पिरिचुअली खुदावन की क्रिएशन को रूल करें, बट being under the authority of Jesus. कि लॉर्डशिप जो अथॉरिटी है, जो हमें देने वाला है, वो ही है, उससे बढ़कर कुछ नहीं है. That lordship, the authority, he is the one who's going to provide us with everything. तो अब मैं इसको एक ही फ्लो में बोलूँगी ताकि आपको और आसानी से समझ आए. So I would say it again in one flow that you can understand. जो आसमानी सल्तनत है वो जो है डिवाइनली ऑथराइज्ड है. दो तरह से ऑथराइज्ड है आसमान और ज़मीन पर, जिसके साथ हमें हकूक और हमें जिम्मेदारियां मिली हैं, जो सिर्फ बिलीवर्स को दी है. बिलीवर्स कौन है? जो ईमान रखते हैं. Who are the believers? जो ईमान रखते हैं. To act on God's behalf, ताकि हम ज़मीन पर खुदावंद यीशु मसीह के लिए काम कर सकें. Ruling His creation under the lordship of Jesus Christ. खुदावंद यहाँ तक नशीन हो और हम खुदावंद हमें बताए कि सारा आपने ये करना है, पास्टर एंडरसन ये करना है, जुलियाना ये करना है, अलीना ये करना है, और हम खुदावंद की लॉर्डशिप में वो चीज़ों को करें. अब मैं चाहूँगी कि हम निकालें यशवा उसका पहला बाब. And I would like you all to take out Joshua chapter 1, chapter 1, verse 3, 5 and 6. Every place that the sole of your foot will tread upon, I have given you. Amen. Hallelujah. हम तीसरे में देखते हैं, जिस जगह तुम्हारे पाँव का तलवा टिके उसको जैसा मैंने मूसा से कहा था मैंने तुमको दिया है. आज ये कलाम खुदावंद आपको दे रहा है कि जिस जगह तुम अपने पैर टिकाओगे, let it be finances. Today the word God is giving you is every place that the sole of your foot will tread upon. Whatever it is, it can be your finances as well. आप अपने जिस हेल्थ में, आप अच्छी हेल्थ में कदम रखें खुदावंद के नाम पे, खुदावंद आपको दे देगा. You will keep a step in your health, God will give you good health. आप फाइनेंसेस में खुदावंद यीशु मसीह के नाम में उसमें बरकत डालें, खुदावंद यीशु मसीह वहाँ ही वो फाइनेंस आपको दे देगा. If you bless your finances, God is going to bless you in your finances as well. खुदावंद अगर आपको वो जॉब चाहिए, खुदावंद यीशु मसीह के दिए हुए इख्तियार से आप वहाँ कदम रखें और खुदावंद आपको वो देगा. So if you want the job, if you ask the Lord with the authority, that job will be provided to you. क्योंकि खुदावंद का कलाम बरहक और सच्चा है. Because the word of God is true. It's true. Yes. True. और खुदावंद का कलाम जो है वो आसमान और ज़मीन टल जाएंगे मगर खुदावंद का कलाम ना चलेगा. The earth and the heaven will fall, but any word that is written in the word of God is not going to fall. Hallelujah. Hallelujah. हम आगे देखेंगे verse 5. तेरी जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने खड़ा ना रह सकेगा. जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे साथ रहूंगा. मैं ना तुझसे दस्तबरदार होऊंगा और ना तुझे छोड़ूंगा. No man shall be able to stand before you all the days of your life. As I was with Moses, so I will be with you. I will not leave you nor forsake you. हालेलुया. हम देखते हैं कि मोसेस के सामने कोई चीज़ खड़ी ना हो पाए. जो रामसेस था, फ़िरौन जो उसको मारने की कोशिश करता था, खुदावंद ने उसको तक ख़त्म कर दिया. हम बाकी सारी चीज़ें देखते हैं कि खुदावंद जो है वो शुरू से लेकर एंड तक मोसेस के साथ मूसा के साथ किस तरह से था. इसी तरह खुदावंद कहते हैं कि कोई इंसान आपके आगे खड़ा ना हो सकेगा. कोई इंसान जो है, जब हम इंसान की बात करते हैं तो इंसान एक क्रिएशन है. If we look at
human is a creation कि कोई इंसान आपके सामने खड़ा ना रह पाएगा। that no human can stand in front of you. इंसान जो है वो एक क्रिएशन है। Human is a creation. वो आपके लिए फाइनेंस में प्रॉब्लम ला सकता है। They can bring a problem to you in finance. अभी हम ये देखें कि कोरोना वायरस जो है वो इंसान ही फैला रहा है। So we see that the coronavirus is spreading by humans. तो इसका मतलब है कि इस वक्त जो हमारा मेन प्रॉब्लम है वो खुद इंसान ही है। So right now if you see the main problem is us, humans as well. हमने सोशल डिस्टेंस किससे करने को कहा है हमें अथॉरिटीज ने? What the authorities have said that we should do social distance from the humans. ठीक है, तो खुदावन का कलाम कह रहा है कि कोई इंसान तुम्हारे सामने खड़ा ना रह सकेगा। And the word of God says, no man shall stand before you. No weapon formed against you shall prosper. कोई भी तीर जो तुम्हारे लिए चलेगा वो प्रॉस्पर नहीं होगा, वो कामयाब नहीं होगा। हालेलुया। हम आगे देखते हैं वर्स 6। सो मजबूत हो जा और हौसला रख, क्योंकि तू इस कौम को उस मुल्क का वारिस कराएगा। Be strong and for good courage, be of good courage. For this people you shall divide as an inheritance the land which I swore to the fathers to give them. मैं दोबारा से पढ़ना चाहूंगी। सो मजबूत हो जा और हौसला रख। Be strong, क्योंकि तू उस कौम को उस मुल्क का वारिस कराएगा। And of good courage, for this people you shall divide as an inheritance. तू उस कौम को उस मुल्क का। अब मैं एक चीज आपको बताना चाहती हूँ। I would like to say something to you all. कि यहाँ पर over here, जो यशवा है, जोशुआ है, over here Joshua, वो जो है अब एक ब्रिज बनेगा। he will be the bridge, ताकि ये कौम so that this nation जो वो मुल्क खुदावन ने रखा है for the country which God has kept for them, लेके जाए, so that they can go. आज हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखते हैं। Now we will see our responsibility today, इख्तियार को हासिल करते हुए, having authority in our lives, कि हमें उन लोगों के लिए ब्रिज बनना है। we have to be the bridge for those people. खुदावन यीशु मसीह उस आसमानी मुल्क के एतबार से for that heavenly country, for that heavenly place, उन लोगों के दरमियान जो खुदावन को नहीं जानते, in those people which do not know the Lord. बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को समझना। It's very important to understand कि हम उन लोगों में ब्रिज बने, that we will be the bridge in those people, कि हम उनका हाथ पकड़कर that we will take their hands और उस मुल्क में ले जाएं, so we will take them to the जहाँ country दूध और शहद की नदियाँ बहती हैं, where there's a flow of honey and milk, जैसा कि खुदावन के कलाम मुकाशवा में भी लिखा है, as it is written in Revelation in the Word of God. और वही सारे हम देखते हैं, वही सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो रेवलेशन में आसमानी बादशाही के बारे में है, Whatever the characteristics is written in Revelation, वही सब कनान में ही देखते हैं। it's there in Canaan as well. हालेलुया। Hallelujah. और फिर हम यहाँ पे एक और चीज़ देखते हैं। And we will look one more thing in this. हम यहाँ पे ये चीज़ देखते हैं कि ये 2 सीजन्स की बात हो रही है। Over here we will look, they are talking about 2 seasons, शरीयत law और फजल। and grace. हम देखते हैं कि मूसा ने कितने पापड़ बेले। We will see Moses had done so many things. ठीक है, वो सही से बोल नहीं पाता था, He was not able to speak वो properly, फिर भी गया, but he still went, लड़ा, fought, बोला, he said, शर्मिंदा होके वापस आया, he was ashamed and he फिर came खुदावन back. उससे बोला जा, Then again God said go. फिर वो पता नहीं कितनी हिम्मत लेकर वापस गया, Then we don't know how much courage he gathered and he went back. फिर कुछ हो जाता था, फिर बेचारा वापस आता था, Then something happened and he लेकिन came वो back थका again. नहीं, But he didn't. He वो was not जाता tired. रहा, He went back again क्योंकि उसे पता था because he कि knew जो उसके साथ है the one who is वो with इन him, सबसे बहुत बड़ा है। he's more than anything. He's greater than He's what greater this than is. anything. हालेलुया। लेकिन अगर हम यशवा की जिंदगी पर नजर करें When we look at the life of Joshua, कि उसको तो कुछ भी नहीं करना पड़ा, he didn't have to do anything. हम आगे देखते हैं खुदावत ने उसको सिर्फ ये कहा है We will see in further verses that God had just said to him, कि तू इस कौम को इस मुल्क में लेके जा get this nation to that country. और तू सिर्फ ये शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे, The Old Testament should not. the word of God shall not leave your mouth,
शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे। और यही तेरे मुंह में दिन और रात रहे। This will be in your mouth day and night. Easy right? आसान है। Easy right? आसान। लेकिन मूसा ने जितना किया वो शरीयत थी। Whatever Moses has done, कि वो शरीयत के काम थे कि इतना सब कुछ करना, ये भी करो, वो भी करो, वो भी करो, ये भी करो। अगर हम शरीयत पे देखें तो कितने सारे लॉज हैं। so if you look in the word of God, there are many laws in Old Testament. लेकिन अब यशवा जो है he is stepping into grace. But Joshua is stepping into grace. यशवा जो है वो फजल के दौर में स्टेप कर रहा है। Joshua is stepping in the season of grace. जहाँ पे उसको बना बनाया सब कुछ रेडी मिल रहा है। He is getting everything ready made. सारी काम रेडी है। The nation is ready. ईमान में सेम पेज पर है। They are on the faith. They are on the same page. अब कोई नहीं लड़ रहा। No one is fighting. अब उसको कोई मसले नहीं आ रहे। No problems. अब यशवा को बार बार जाकर खुदावन को ये नहीं बोलना पड़ेगा कि खुदावन ये मुझसे पानी मांग रहे, खुदावन इनको भूख लगी है। Joshua doesn't have to go and ask Lord like they are asking for water, they are asking for food. ये अथॉरिटी खुदावन ने उसे दी। That authority was given to Joshua by God. आज ये अथॉरिटी हमारी जिंदगियों में है। Today the same authority is given to us as well. कि कोई और आपके लिए काम करेगा That someone else will do the work for और you, आप उसका फल खाएंगे। but you will eat the fruit for it. क्योंकि Because खुदावन यीशु मसीह ने Jesus Christ, हर चीज को everything अपने लहू से due to His blood, उसमें गलबा पाया He has overcome it. और वो हर चीज जो आसमानी मकामों में हमारे लिए बरकतें हैं, And whatever is kept for us in heavenly वो जो realms, सारे इख्तियारात हैं the authorities वो हमारे लिए रख छोड़े हैं। is given to us. तो हमें सिर्फ क्या जरूरत है? What are we supposed to do? We just need to step in. हमें सिर्फ एक कदम बढ़ाना है. खुदावन कहते तो मेरी तरफ एक कदम ले तो मैं तेरी तरफ 10 कदम आऊंगा। God says, take one step and I will bring 10 steps of mine in front of you. तो कितनी अजीब बात है It's a very weird thing. कि हमें खुदावन की हजूरी या खुदावन की उस अथॉरिटी के लिए कोई पापड़ नहीं बेलने पड़ रहे। It's a very weird thing that for the authority of God, we don't have to do many things. नबी पैगंबर कितनी दूर चल चल के जाते थे, क्या क्या जुल्म सहते थे। The prophets has to go through a lot. They used to suffer a lot. लेकिन फजल के दौर में But in the season of grace, खुदावन हमें ये सारे इख्तियार God has given us these authorities. हालेलुया। Hallelujah. हम अगर देखें लूक 10:19, If we see Luke chapter 10 verse 19, मैं चाहूंगी कि आप मेरे साथ निकालें। और इसमें कुछ इस तरह से लिखा है लूक 10 और उसकी अगली साइड में कि देखो मैंने तुमको इख्तियार दिया कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ और तुमको हरगिज़ किसी चीज से ज़रर ना पहुंचेगा। behold, I give you the authority to trample on serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. हालेलुया। Hallelujah. सांपों और बिच्छुओं को, Serpents and scorpions. हाँ, अगर आप लोगों में से अगर कोई गांव या किसी ऐसी जगह से ताल्लुक़ रखता हो जहाँ पे ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन है, So any one of you who is related to any village, they will know. तो आपको पता होगा So you will know कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलना is not easy. that To trample the snake and the scorpion is not easy. कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलना आसान नहीं वो है. कोई कॉकरोच नहीं है कि बस पैर रख दिया और मर गए। They're not cockroaches that you will trample on them and they will die. वो कोई कीड़ा नहीं कि पैर रखा और वो मर गए। And they are not insects that if you keep leg on them and यहाँ बात हो रही सांपों और बिच्छुओं की। Right now we're talking about serpents and ये एक scorpions. खतरनाक स्पीशीज है They are very dangerous species. जिनका डंग आपको फौरन मार सकता है। Their one bite can kill you. तो खुदावन का यहाँ पर इस बात का जिक्र अपने शागिर्दों के साथ करने का मतलब क्या है? So what is God trying to say to His people? खुदावन यीशु मसीह हाथी, घोड़े, इन सब की भी एग्जांपल्स दे सकते हैं। God can give an example of elephants and donkeys as well. लेकिन खुदावन ने इसकी एग्जांपल इसीलिए दी God has given this example because कि सिचुएशन, the situation, इंसान, humans, हालात जितने भी जहरीले या खतरनाक क्यों ना हो, whatever the situation is, you're gonna and no matter how dangerous they are, no matter how dangerous and poisonous they are,
खुदावन यीशु मसीह के इख्तियार से you can overcome it. With the help of Jesus Christ's authority, you can overcome them. आप उस पे गलबा पा सकते हैं You can overcome them. और इसको लाइटली मत लें। Don't take it lightly. हम जो है ना, जब खुदावन की अथॉरिटी को अपनी जिंदगी में नहीं समझते ना, When we don't understand the authority of God in our life, तो हम अपने आप को बहुत ज्यादा खुदावन की नजर में डीवैल्यू करते हैं। so we devalue ourselves in the eyes of the Lord. इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं कि हमारी अथॉरिटी क्या है। It doesn't matter to us in any ways because we don't know the authority. लेकिन दुख खुदावन को होता है, क्योंकि खुदावन ने सलीब पर अपनी जान दी। But God is very hurt because God has died on the cross for you. ताकि खुदावन इन चीजों पे, ताकि यीशु ने इन चीजों पे गलबा पाया, ताकि हम इन इख्तियारों को इस्तेमाल कर सकें। God has overcome all of the God has overcome all of this, so we would have authority towards them. लेकिन होता क्या है? But what happens? वही चीजें पड़ी रहती हैं, The things are kept there only. सिचुएशंस आ जाए, This हालात आ जाएं, कुछ भी बुरा हो जाए, something bad happens. तो हम फौरन क्या कहते हैं What do we say? कि हाय खुदावन, God, हाय खुदावन मुझे क्यों, why me? हाय खुदावन मेरे ऊपर क्यों, Why is it on me? उसने तो इतना गुनाह किया, उस पे तो कुछ भी नहीं है, He has done so much sin. Why not on him? वो तो चर्च में नहीं जाता। Doesn't even go to church. लेकिन But कभी कभी खुदावन हम पे ये मुश्किलें देता है, sometimes God gives us His temptation ताकि हम अपनी अथॉरिटीज को समझ सके और इस्तेमाल कर सके। so we can understand our authority and use them. हालेलुया। Hallelujah. इसी तरह हम मत्ती 10 पहली आयत पे फटाफट जाएंगे। फिर उसने अपने 12 शागिर्दों को पास बुलाकर उनको नापाक रूहों पर इख्तियार बख्शा कि उनको निकाले और हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को दूर करें। मैं फटाफट इसको इंग्लिश में पढ़ना चाहूंगी कि then God called 12 of his disciples to him and told them that you will overrule the unholy spirits and you will have authority to order them and they will leave, and every type of diseases and every type of weaknesses will leave in the name of Jesus. कि खुदावंद ने हमें इख्तियार दिया है बिच्छुओं पर, सांपों पर, नापाक रूहों पर, That God has given us authority over serpents, scorpions, and evil spirits, और हर तरह की बीमारी, हर तरह की कमजोरी। and on every weakness and disease. इसका क्या मतलब है? What is the meaning of this? कि हमें जरूरी नहीं है हम हर बीमारी पे पास्टर जी को कॉल करें। It's not important that we have to call Pastor G on every disease or any weakness. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप कॉल ना करें, I'm not saying that you should not call. पर मैं ये कह रही हूँ कि पहले आप अपने इख्तियार को इस्तेमाल करें, I'm saying you to use your authority first. क्योंकि खुदावन ने इख्तियार सबको दिया है। Because God has given everyone the authority. जो जो चीजें खुदावन ने अपने 12 शागिर्दों से प्रॉमिस की हैं, Whatever God has promised to His 12 disciples, शागिर्द वो थे जो खुदावन के पीछे चलते थे, disciples were those people who were walking behind Jesus. और आज हम खुदावन के शागिर्द हैं इस रोए जमीन पर। Right now we are the disciples of God in this world. और ये सारे वादे और ये सारे इख्तियारात और ये सारी जिम्मेदारियां जितनी उनकी थी उतनी हमारी भी हैं। And all these promises and the authority, it belongs to us equally as it was given to the disciples. हालेलुया। Hallelujah. मैं चाहूंगी कि हम इफिसियों का पहला बाब उसकी 15 से 23 आयत तक पढ़ें। We will go to Ephesians chapter 1, 15-23। 15-20. हालेलुया। और इसमें इस तरह से लिखा है, इस सबब से मैं भी उस ईमान का जो तुम्हारे दरमियान खुदावन यीशु मसीह पर है और सब मुकद्दसों पर जाहिर है, हाल सुनकर तुम्हारी बाबत शुक्र करने से बाज नहीं आता और अपनी दुआओं में तुम्हें याद करता हूँ। हम एक्चुअली 17वीं आयत से पढ़ेंगे कि हमारे खुदावन यीशु मसीह का खुदा जो जलाल का बाप है तुम्हें अपनी पहचान में हिकमत और मुकाशफा की रूह बख्शे। Read 17। That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. तो इससे पेशतर के इसके आगे जब हम जाएंगे तो वो सारी आसमानी जो रिचेस हैं और जो हेवनली रिचेस हमारे लिए रखी हैं, So as soon as we go inside this verse, we will understand the riches and the blessings God has kept for us. उससे पहले पालूस रसूल जो है वो कलीसिया के लिए दुआ कर रहा है। Before that, Paul is praying for the congregation. कि हमारे खुदावन यीशु मसीह का खुदा जो जलाल का बाप है, जो ग्लोरी का बाप है, जो जलाल का बाप है,
the Lord Jesus and the love for all his saints, कि तुम्हें अपनी पहचान में हिकमत और मुकाशफा की रूह बख्शे। so that he will give us the understanding of wisdom and revelation. तो हमें खुदावन से इस तरह की अंडरस्टैंडिंग मांगनी है So we have to ask God for this kind of understanding, which surpasses every human understanding, जो हर इंसानी फहम से ऊपर हो, और तुम्हारे दिल की आंखें रोशन हो जाएं। and your and the heart And read 18, और तुम्हारे दिल की आंखें रोशन हो and जाएं। the eye of your understanding being enlightened. And the eye of your heart, और तुम्हारे दिल की आंखें रोशन हो जाएं। And the eye of your heart will be enlightened. हालेलुया। खुदावन यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि तुम्हारी जो जिस्मानी आंखें उनको रोशनी दे दूं। पौलुस रसूल इस चीज की दुआ नहीं कर रहा। God is not speaking about the physical eyes you have. हमने लास्ट टाइम ये देखा था कि खुदावन जो है हमसे हमारे दिलों की कुर्बानी, Last time we saw that God needs a sacrifice of our heart. कि हमारे दिल पाक हो। Our heart should be pure. बार बार बैक टू बैक Back to back. दिल की बात हो रही है, We are talking about the heart. और यहाँ पे पौलुस रसूल भी यही कह रहा है, And over here even Paul says the same. और तुम्हारे दिल की आंखें रोशन हो जाएं। Your heart, your eyes of your heart of your eyes should be enlightened. ताकि तुमको मालूम हो कि उसके बुलाने से कैसी कुछ उम्मीद है, That you may know what is the hope of his calling. और उसकी मिरास के जलाल की दौलत, What are the riches of the glory of his inheritance in his saints. मुकद्दसों में कैसी कुछ है। In his saints. हालेलुया। Hallelujah. अब इधर जब हम देखते हैं तो यहाँ पर जो है वो उस मिरास की बात कर रहा है जो खुदावन यीशु मसीह ने हमें दी। Now we will see that they are talking about the riches which God has given us. मिरास के जलाल की दौलत, The riches of the glory of his inheritance. ये दौलत जो जमीन पर है, ये रुपए पैसे की दौलत नहीं, The wealth of money which is in the physical realm, not that one. मिरास के जलाल की दौलत, Riches of the glory of his जो inheritance. खुदावन के वादे हमारे साथ हैं, The God's promises which are जो इब्राहिम, इसहाक और याकूब के वादे हैं, which is with Abraham, Isaac and Jacob. जो वो मिरास है जो हमारी जिंदगियों पे खुदावंद आज देना चाहता है। The same way God has wants us to give He wants to give the riches of the same way. हालेलुया। Hallelujah. अगर हम यहाँ पे एक चीज देखें Now if we see one thing in this, तो पौलुस रसूल ये नहीं कह रहा कि तुम जब मरो तो तुम वो चीजें देखो। Paul doesn't say when you die you're going to see the things. पॉल ये नहीं कह रहा कि जब तुम मर जाओगे तो खुदा के जलाल को देखोगे और उस बेटे को देखोगे और उस मिरास को देखोगे जो उसने तुम्हारे लिए रख छोड़ी है। He didn't say when you will die you will see the Son of Christ and you will see the riches which is provided over there. बल्कि पौलुस रसूल ये कह रहा है कि खुदावन तुम्हारे दिल की आंखों को खोले ताकि तुम्हें नजर आए और तुम्हें समझ आए कि खुदावन ने तुम्हारे लिए कौन कौन सी नेमतें रख छोड़ी हैं। But he says that God shall open your eyes, heart of eyes, so that you can be enlightened with His riches and the authority which is given to you. और हम ईमान लाने वालों के लिए उसकी कुदरत क्या ही बेहद है। So for the people who have faith in God, what is the authority in our life? तो वो जो खुदावन की कुदरत है वो लिमिटलेस है, The glory of God is limitless. बहुत ज्यादा है। बहुत ज़्यादा है. हालेलुया। Hallelujah. अगर हम यहाँ पे देखें, If now we look in this verse, जो उसने मसीह में 20वीं आयत में, जो उसने मसीह में कि जब उसे मुर्दों में से जलाकर अपनी दाहिनी तरफ आसमानी मकामों पर बिठाया, which he worked in Christ when he raised him from the dead and he seated him next on his right hand in the heavenly places. और हर तरह की हुकूमत और इख्तियार और कुदरत और रियासत और हर एक नाम से बहुत बुलंद किया जो ना सिर्फ इस जहान में बल्कि आने वाले जहान में भी लिया जाएगा। Far above all the principalities and the power and the mighty of dominion and every name that is named, not only on his age but also in that which is to come, and he will put all the things under his feet and give him और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसको सब चीजों का सरदार बनाकर कलीसिया को दे दिया। and he put all things under his feet
and he gave him to be the head over all the things to the church. ये उसका बदन है और उसी की मामूरी जो हर तरह से सबका मामूर करने वाला है, Which is his body and the fullness of him who fills all in all. हालेलुया। अब हमारी चर्च की जो है वो एनिवर्सरी आने वाली नेक्स्ट 3 डेज में, और मैं जो हूँ खुदावन से ख़ास तौर ना हमारे कलीसिया के लिए मांग रही थी कि खुदावन जैसे कि यही वीक है कि जब हम जो है वो खुदावन इस एनिवर्सरी को जो हम अपने घरों में सेलिब्रेट करेंगे और मतलब खुश होंगे और मतलब अपने घर में इस चीज़ को एंजॉय करेंगे, तो खुदावन तो मुझे कुछ ऐसा कलाम दे जो मैं तेरी कलीसिया तक मुंतकिल करूँ। तो ये चीज़ खुदावन ने मुझे दी, अगर हम बाएं साइड देखें, और सब कुछ उसके पाँव तले कर दिया और उसको सब चीज़ों का सरदार बनाकर कलीसिया को दे दिया। So as we know, there's an anniversary, church anniversary in 2 to 3 days. So I was talking to God and speaking to Him so that He would give me the word of revelation for the church. So I got the word from God, which is Ephesians 1 verse 23, which is 22, His body. 22 verse 22, and He put all things under His feet and gave Him to be the head over all things to the church. हालेलुया। Hallelujah. और इसके साथ ही I would like to add up, और इसके and with this मैं चाहती हूँ कुछ ऐड करना। इससे 2 बाप उसकी 4 से 10 आयत तक, Ephesians chapter 2 verse 6 to 10. हम इसको इंग्लिश में रीड नहीं करेंगे, सिर्फ उर्दू में रीड करेंगे। मगर खुदा ने अपने रहम की दौलत से, उससे बड़ी मोहब्बत के सबब से जो उसने हमसे की, जब कसूरों के सबब से मुर्दा ही थे तो हमको मसीह के साथ जिंदा किया। प्लीज इस चीज़ पे नोट रखें। और मसीह यीशु में शामिल करके उसके साथ जलाया और आसमानी मुकामों पर उसके साथ बिठाया। ठीक है, आगे ताकि वो अपनी उस मेहरबानी से जो मसीह यीशु में हम पर है आने वाले ज़मानों में अपने फजल की बेनहायत दौलत दिखाए। हालेलुया। खुदावन का शुक्र करते हैं कि हम यहाँ पे जब देखते हैं तो खुदावन बालूस रसूल ये कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें जो है वो खुदावन यीशु मसीह के इख्तियार में देकर, all these riches over here we will see that Paul is saying that all these riches were given to Jesus, खुदावन को दी गई थी, उसके इख्तियार में दे दिया। it was given in that authority. और आगे खुदावन को किसको दे दिया? And whom was Jesus given? And whom was Jesus given? कलीसिया को, to the congregation. हालेलुया। Hallelujah. अब मैं जानना चाहूँगी, I want you to go मत्ती की इंजील उसका 16 बाब उसकी 18 से 19 आयत। इसको भी जो है हम सिर्फ उर्दू में ही पढ़ेंगे। 16 बाब उसकी 18 से 19 आयत, 18 से 19 आयत में यूँ लिखा है, और मैं तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आयल में अरवा के दरवाजे और उस पर गालिब ना आएंगे। मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा और जो कुछ तू ज़मीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंध जाएगा और जो कुछ तू ज़मीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुल जाएगा। हम देखते हैं कि खुदावन यीशु मसीह को सारा इख्तियार देकर कलीसिया को दे दिया। So we see that the whole authority was given to Jesus, and from that it was given to the congregation. और उसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि इफिसियों 2 बाब और उसकी 4th, 5वीं और 6वीं आयत में, and after that we will see in Ephesians chapter 2 verse 5, 6 कि अभी जो कि हम जिंदा ही हैं, and the people now who are alive, लेकिन फिर भी उसमें लिखा है कि हम मुर्दा थे और मसीह यीशु के साथ जिंदा किए गए। but it's written that we are dead, but now we are arising in the Lord. और शामिल करके उसके साथ जला और आसमानी मुकामों में उसके साथ बिठाया। That we are seated at the throne at the right hand of the Father with Jesus. कि हम खुदावंद यीशु मसीह के साथ उधर बैठे। इसका मतलब क्या है कि अगर हम ज़मीन पर इस वक्त हैं, हम सेम टाइम पर, अगर हम बिलीवर हैं और हमारा खुदावंद पे ईमान है, हम इस वक्त सेम टाइम पर खुदावंद की उस प्रेजेंस में, उस जलाल में हैं। ये चीज़ कैसे हमें पता है? ये खुदावंद का कलाम कहता है कि उसके साथ जलाल आसमानी मुकामों पर उसके साथ बिठाया है। कि इस वक्त जब हम ज़मीन पर हैं, हम इस वक्त ही आसमान पर भी हैं। लेकिन होता क्या है?
We are here at the same time on the earth and we are here on the same time at the heaven as well. But what happens? होता क्या? होता क्या है? ये होता है कि हम ज़मीनी एतबार से ऑपरेट करना शुरू हो जाते हैं. We start operating to the physical realm. हम अपनी आसमानी अथॉरिटीज़ को भूल जाते हैं कि हम वहाँ पर भी हैं. We forget that we have spiritual realm and we forget the authority. कि हमारी वहाँ पर भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है. That we have the responsibility over there as और well. जब हम ज़मीनी तौर पे ऑपरेट करना शुरू करते हैं And when we start operating physically, और सिर्फ ज़मीनी चीज़ों पर हमारा फोकस होता है, and our focus is only on worldly things, हम जो है वो स्पिरिचुअल रेलम से डिस्कनेक्ट होना शुरू हो जाते so हैं. we start disconnecting from the spiritual realm. क्योंकि एक बच्चा जो घर पे माँ बाप की औलाद है, And one child who is the child of his parents, वो घर का बच्चा होते हुए घर आता ही नहीं है. being the child of the house, he doesn't come to the house. तो ना वो किसी फैसले में शामिल होगा So he's not included in any decision और ना वो किसी चीज़ में शामिल होगा. or anything else. क्योंकि हम देखते हैं जब कोई खुदावन जो है वो सदूम और गमोरा को गर्क करने वाला था तो वो इब्राहिम के पास आया ताकि उसे बता सके. So when we see then when God was going to destroy Sodom and Gomorrah, God came to Abraham. इसका मतलब है खुदावन चाहता है कि वो अपने डिसीजंस में हमें शामिल करे. That means that God wants us that we should be included as well in His decisions. लेकिन हम ये भी देखते हैं कि हम डिसीजंस में किसको शामिल करते हैं. But we also see who do we include in our हम decisions. जिसके साथ बैठे होंगे, The one who are we seated जिसके with, साथ बहुत ज़्यादा इंटीमेसी होगी, the person we're very intimate जिस पे with, यकीन होगा, the person we trust a lot, जिसके ऊपर हमारा ईमान होगा, the one we have faith on. उसके साथ ही हम अपनी बातें शेयर करेंगे. We will share all the things only with them. और वापस कलीसिया की बात पे आते हुए If we go back on the congregation, तो हम ये देखते हैं कि खुदावन कह रहे हैं कि तू पतरस है so we will see that God has said that we are Peter, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा. and I will make my congregation on the stone. आज हम कई कलीसिया देखते हैं वो क्यों कामयाब नहीं होती हैं. And we will see that many congregations nowadays are not successful. Why? क्योंकि हम चर्च अपने लिए खोलते हैं यस्सु के नाम पे. We open the church on our names for Jesus. We open the church for ourselves with the name of Jesus. हम अपने नाम से खुदावंद का चर्च खोलते हैं. हम अपने नाम से अपने लिए खुदावंद का चर्च खोलते हैं, लेकिन हम खुदावंद के नाम के लिए और उसके लिए अपना चर्च नहीं खोलते. आप समझ रहे हैं इस चीज को? But we don't open for Jesus, but we open it for ourselves. हम डोनेशंस के लिए चर्च खोल लेते हैं, We open it for donations, जिद में खोल लेते हैं, stubbornness, लेकिन हम उस कॉलिंग को या वो चीज जो खुदावन पतरस से वादा कर रहा है, the calling as per Peter has as per God has given to Peter. हम ये नहीं देखते कि खुदावन कह रहे कि उस चीज की बुनियाद मैं हूँगा. So we shall see that God didn't say that I'll be the foundation of that congregation. आगे खुदावन कह रहे मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे देता हूँ. So God says I will give you the kingdom, the riches of the heavenly kingdom. I will give you the access to the kingdom. I will give you the keys to access the kingdom. खुदावन यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुम्हें देता हूँ. तो इसका मतलब ये है कि हम अभी जब ज़मीन पर हैं, लेकिन इससे पहले अगर हम देखें तो कलीसिया से ये वादा किया गया है कि मैं तुम्हें आसमान की बादशाही की कुंजियां देता हूँ. ये हमारा पर्सनल कीचेन नहीं है. So if we see that God has promised us that He will give us access to heaven, But this is not our personal keychain. but ये हमारा personal keychain नहीं है. Only if we are connected with the body of Christ. सिर्फ जब हम खुदावन के बदन और खून में शामिल होते हैं, सिर्फ हम खुदावन के बदन के साथ शामिल रहते हैं खुदावन की कलीसिया में. only if we are connected with God in His body in the congregation, हम तब ही उन कुंजियों को अपनी जिंदगियों में अपनी सिचुएशन में इस्तेमाल कर सकते हैं. only then we can access that in our lives. और उसके बाद ये लिखा है, और जो कुछ तो जमीन पर बांधेगा, And whatever you bound in the earth, वो आसमान पर बंध जाएगा. and it will be bound in on heaven. और जो कुछ तो जमीन पर खोलेगा वो आसमान में खुल जाएगा. And whatever you lose in earth will be loosed in the heaven. हालेलुया. Hallelujah. तो इसका मतलब ये है कि हम सिर्फ कलीसिया में होते हुए
So that means we are being in the congregation, हम कलीसिया में होते हुए being in congregation. अगर कलीसिया के साथ जुड़े हैं If we are attached with the तो congregation, हम वो कुंजियों की चाबी में से एक चाबी निकालेंगे so we will the access which is provided, we will take out one key from there, और वो दरवाजा जो हमारी जरूरत के लिए हमने खोलना है हम खोलेंगे and the door which we have to open for our necessities, we have to open it. हम वो जो जमीन पर वो कुंजी को इस्तेमाल करते हुए खोलेंगे We will open it. We will use that key that has been given to the congregation हम वो की को इस्तेमाल करेंगे congregation को जो मिली है, और वो चीज़ हम ज़मीन पर ईमान से खोलेंगे and we will open that with the faith, और वो आसमान पर खुल जाएगी and it will be opened in heaven as well. और वही कुंजियों को जो खुदा ने कलीसिया को दी है And the same access that is given to the congregation, हम कलीसिया के साथ शमूलियत में होते हुए and we being with body of Christ, with body of Christ, हम वो एक चाबी लेंगे जो हमने बंद करना है we will take one key that we have to close. और हम उस चीज़ को जब ज़मीन पे ईमान के एतबार से बंद कर देंगे So with the faith, if we close the door, वो आसमान पर बंद जाएगा so that will be bounded on earth as Hallelujah. well, on heaven as well. लेकिन बात यहाँ पे क्या हो रही है कि कलीसिया के साथ होना कितना ज़रूरी है So over here we are talking about it's very important to be with congregation. हमने जब पहले सारे इख्तियारात पढ़े So when we learned about the authorities, आसमानी मिरास heavenly riches, तो उसमें पौलुस कहते हैं कि वो सारी चीज़ें जो है खुदावन यीशु मसीह को इख्तियार देकर और यीशु को कलीसिया को दे दिया so Paul says that that authority is given to Christ, and from Christ and Christ is given to the congregation. तो इसका मतलब है कि हमारा जो पावर सॉकेट है So that means a power socket. अथॉरिटी को हमारी जिंदगी में रिलीज होने के लिए For authority to be released on our lives, उसकी मेन जो वजह है the main reason for it, उसकी मेन जो एक रास्ता है the main way for that, वो कलीसिया से होके गुजरता है that is going through congregation. मैं सिंगल पर्सन होते हुए Me being a single person, आसमान पर मैं जमीन पर या आसमान पर कोई चीज नहीं बांध सकती I cannot bound anything on earth or heaven. मैं उस इख्तियार को इस्तेमाल नहीं कर I सकती cannot use that authority मैं उस चीज को इस्तेमाल नहीं कर सकती क्योंकि वो कलीसिया की एंटिटी है because that's the entity of the वो congregation. खुदा ने कलीसिया को दी है कुंजियां Because that access God has provided to the congregation. हम देखें अगर हमने किसी के घर जाना होता है So if we see that if we want to go to someone's house, तो उस जो उसकी चाबी होती है वो जिस फैमिली मेंबर के पास होती है and we see that the access to the door, the one family member has it, या जिस फ्रेंड के पास होती है or any friend has it. हमें पता होता है कि ये इस फैमिली के जो है वो बहुत करीब है So we know that he's very close to that family. हालेलुया Hallelujah. और इसी तरह से जिस खुदा ने कलीसिया को इख्तियार दिया लेकिन वही जिसकी फाउंडेशन खुदावन यीशु ने खुद रखी है God has given that authority, but that congregation which has strong foundation with Christ. और अब अगर हम अपनी वर्शिप में इस चीज़ को देखें कि जब हम वर्शिप करते हैं तो हम इंटीमेट होकर खुदावन से इस तरह से उसको मांगे कि वो और आप एक हो जाएं So when we worship God, we should be intimated in our intimacy with God should be so strong that He's the only person we want. that we will be one with him That we will be हम एक होंगे और उनमें. फिर खुदावन की हजूरी इस तरह से ठहर जाए कि हम अपनी शनाख्त उस आसमानी मकामों की समझ जाएं So that the identity which we have in heavenly realm, we can understand that. और उसके बाद हम अपनी अथॉरिटीज को अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करें And after that, we will start using our authorities in our lives. उस चीज को एंजॉय करें We will enjoy that क्योंकि ये सारी चीजें खुदावन ने हमारे लिए दी हैं because everything God has provided, it's for us. आप जब मर जाएंगे कोई फायदा नहीं है वो अथॉरिटीज आपके लिए आपकी जिंदगी में थी When you die, it's no use of those authorities because when you were alive, that the authorities was given to you. आपने उसे इस्तेमाल नहीं किया You didn't use it. यहाँ पर इस बुक में सब कुछ था क्योंकि because it was written in the word of God. Everything लेकिन was read. आपने नहीं समझा You didn't understand it. इसीलिए आपने इख्तियार इस्तेमाल नहीं That's why you किया didn't use the authority. क्योंकि खुदावन सिर्फ हमारे मरने में हमारा निजात दहिंदा नहीं बनना चाहता Because God doesn't want to be the salvation only when you're died. वो सिर्फ हमारी मरे हुए जिस्मों पर या हमारी रूह जो उसके पास वापस चले जाए उस पर इख्तियार नहीं चाहता
चाहता When we die and the spirits are gone to heaven, he doesn't want the authority over them. बल्कि खुदावन चाहता है कि वो हम पर इस ज़मीन पे अथॉरिटी हमें दे और उसकी अथॉरिटी हमारे ऊपर हो, He wants that he should have authority on us when we are living on the earth. क्योंकि So वो that- हमारे जीने और हमारे मरने में हमारा खुदा है। Because he's our God when we are alive and we are dead. खुदावन आपको इस कलाम से बहुत ज़्यादा बरकत May दे। God bless you from this word of God. Amen. Amen.